Yes, in the last lecture we have completed the uh, joins. Okay, joins, na joins. We have completed the last lectures. Okay. Yes. Yes. Or kya? Which topic we have covered in the last lecture, students? One more topic we have covered, na? View. Yes. View. Yes, Arun. View we have covered in the last lecture. View is covered. Yes, Arun Herinki. View we have covered. Okay. Now today we are going to learn the numeric functions and operators. Okay. Numeric operators. MySQL arithmetic operators. So what is operator? You know. Okay. Plus, minus, subtraction, all are the operators that you have already used in your other programming languages. So operators are also available in DBMS. You can perform the arithmetic functions on the table also. Okay, on the table data also. The modulus, okay, multiplication, addition, subtraction, an array, matlab minus, div. Okay, these all are the operators. Yes. मार्क्स मार्क्स यू विल बी गेट ओके जैसे मैम बताएंगे वैसे वी विल डिस्ट्रीब्यूट टू यू मार्क्स ओके तो अभी उसका मार्क्स का छोड़ दो ओके ऑपरेटर्स ओके तो मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन अनअरे डिवीजन div okay all are the arithmetic operators then how to perform the arithmetic operator so simply if you want to do one single data okay single data पे use करना है तो you can use like that select mode operator if you want to use तो select 100 mode 23 and column okay so what is a mode मतलब क्या when you are doing the mode then what will be the output students mode का output क्या होगा what will the output of mode reminder okay we will get the reminder when we are applying the mode operator yes Arun reminder is the output so here what I am doing here select 100 mode 23 select 100 mode 23 so what is the reminder 8 so you can do also you can do the operators use like this okay and the another way is how to use the uh, on the table okay if you want to do on the table so you can also do on the table so for example here we have created the one table okay create table data okay name and score integer so if you want to calculate the mode operations okay on the table then how to write so they are using the if condition okay select name okay select name what is the table data क्या है name and score तो select name if score modulus 2 तो odd otherwise even okay if you can also use the if in condition में आप use if be you can use in the condition okay MySQL जो condition in that you can also use the if so if score modulus 2 what is score is a one field column in our table modulus 2 अगर है तो odd जो है that should be printed otherwise even should be printed okay as odd even okay as odd even is a आपको column name देना है तो you can write the as odd even otherwise you can directly write the from table name okay from table name and you have to specify the MySQL modulus operator this is a modulus operator so you have to specify okay so you can do like this with the table also okay आप table के साथ ऐसे भी कर सकते हो if you want to do multiplication okay so you can directly do the multiplication directly भी कर सकते हो select 20 multiplication 20 so 400 ओके तो ऐसे भी कर सकते हो इफ यू वांट टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑन दी टेबल तो टेबल पे भी यू कैन डू ओके टेबल पे भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ओके तो यहाँ पे सी ये आई हैव क्रिएटेड वन टेबल ओके एक टेबल मैंने क्रिएट करके रखा है क्रिएट टेबल STU1ENT करके ओके उसमें नेम आई हैव टेकन दी वन फील्ड नेम वेरकेर
दिया है, मैथ एक सब्जेक्ट है इंटीजर, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, साइंस हिस्ट्री इंटीजर दिया है. इफ यू आर गिविंग द इंटीजर तो यू कैन स्किप द साइज, स्किप कर सकते हो, अदरवाइज देना है तो यू कैन ऑल्सो गिव द साइज. ओके, तो टेबल क्रिएट किया, इन दैट टेबल आई हैव एंटर्ड दी 4 वैल्यूज. ठीक है, 4 वैल्यूज इंसर्ट किया है. ठीक है, तो सेम ही वैल्यूज मैंने डाल दिया है. देन वो टेबल में दिस आर द डेटा इन दैट टेबल. ओके, इफ यू वांट टू डू मल्टीप्लिकेशन या तो कोई और ऑपरेटर यूज करना है तो यू कैन डू. तो कैसे करना है, सिलेक्ट नेम. ओके, नेम इज अ फील्ड, कॉमा करके ब्रैकेट में क्या किया मैंने, जो कॉलम से उसका प्लस किया हुआ है, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री. ओके, देन उसका क्या किया है, परसेंटेज आई हैव फाइंड. ओके, परसेंटेज मैंने फाइंड किया तो फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइड जो भी एडिशन होगा वो डिवाइड बाय 400 इंटू 100 एस परसेंटेज. ओके, एस परसेंटेज इज अ हेडिंग. एस परसेंटेज करके लिखोगे तो परसेंटेज जो हेडिंग है वो डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, फ्रॉम दिस स्टूडेंट, सॉरी जो स्टूडेंट का नेम है वो STU1ENT, तो यू विल गेट द नेम एंड परसेंटेज. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यू वांट टू डू तो select name. Okay, select name, what is the column, select name. Okay, math plus English. Okay, these are the columns names students. Okay, these are the columns names. ये सारा क्या है, columns name है. Okay, science, if you want to apply multiplication. Okay, या तो कोई भी ऑपरेशन अगर आपको अप्लाई करना है in the on the table then you can do. Okay, as ADDI, कोई जो भी आपको एस कॉलम का जो भी नेम चाहिए दैट यू कैन राइट. टेबल नेम STU1ENT. ओके, तो मैंने एक ही एंट्री 3 टाइम्स कर दिया था. ओके, तो उसका एडिशन होके आ गया. ठीक है, जो मोहित है उसका एडिशन होके, एक मिनट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STU1ENT. ओके, दिस इज ए टेबल, ये टेबल है. ठीक है, दिस इज ए टेबल, ये दिस इज मेन टेबल है. क्या उसमें नेम है, नेम इज देयर मोहित. मोहित मैंने एक ही डाल दिया. मैथ्स इंग्लिश साइंस हिस्ट्री का मार्क्स है. अगर इफ यू वांट टू डू एडिशन ऑफ दिस सब्जेक्ट एडिशन करना है फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए तो यू कैन डू. ओके, तो कैसे करना है, तो जस्ट यूज द ऑपरेटर्स. प्लस किया है मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट नेम कॉमा, नेम भी चाहिए हमको, नेम कॉमा. ओके, ये दिस इज अ सिंटेक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, आपको वो याद रखना है. नेम कॉमा subject column name, maths is a column name plus English column name plus science column name plus history as addition from table name. As addition, what is the use as addition, मतलब क्या, जो भी यहाँ पे लिखोगे ना वो column name डिस्प्ले होगा. ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले होगा. हेडिंग यू कैन सी, हेडिंग यू कैन सी फ्रॉम टेबल नेम, तो एडिशन हो गया. इसको एवरेज, इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज तो एवरेज का फॉर्मूला लगा दो. ओके, तो यू कैन यूज द ऑपरेटर लाइक दिस. इन्होंने यहाँ पे देखो हिस्ट्री ओके एडिशन किया है, डायरेक्ट साथ में उसको डिवाइड करके 400 इंटू 100 मल्टीप्लीकेशन, मतलब परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया, तो परसेंटेज इज फाइंड है. हियर आई हैव डन ओनली एडिशन किया है मैंने, तो एडिशन हो गया. तो दिस आर दी ऑल operators, so you can use the operators with the tables also. Okay, tables में आप लोग operators apply कर सकते हो. So this is your arithmetic operators. Okay, yes, the next is numeric functions. Okay, we have already covered the numeric functions in JavaScript, in PHP. Okay, also we have covered the function, the same functions are same, use भी same है, only syntax थोड़ा change होगा. The numeric functions are used for primarily for numeric manipulation, okay, or mathematical calculation. The ABS, absolute value, return the absolute value of numeric expression. Okay, return the absolute value of numeric expression. What is the meaning of absolute? क्या है, क्या था absolute function? ABS function का यूज क्या था? What is the use of ABS function? कौन बताएगा मुझे? Yes, याद आया. What is the use of absolute ABS?
as absolute function. Yeah, we have already done this function in JavaScript, in PHP also. We have already done this function. ABS. What is the use of ABS? Sorry. What is the use of ABS? Return the absolute value. What is the meaning of absolute? मतलब क्या जो माइनस होगा वो प्लस as a plus return. Yes, convert negative into the positive. Yes, very good, Arun. Okay, convert the negative value into the positive. If you are given the positive तो positive ही return होगा. अगर negative दिया है तो वो negative का positive convert करके देगा. Okay. Okay. If you want to apply on the columns, okay, values पे देना है तो you can apply. Okay, तो select. ठीक है, यहाँ पे दिया है क्रिएटिंग दी वन टेबल, क्रिएट टेबल टेस्ट. ओके, टेबल बनाया टेस्ट, उसमें एक कॉलम दिया टेकन रेडियस करके कॉलम दिया, उसको इंटीजर दिया तो वन टेबल दिया क्रिएटेड. देन उसमें वैल्यू डाल दिया, इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज 20 30 40 queries. Okay, 3 rows affected, data डाला. Then what they how they are finding the absolute value, to select radius. Okay, absolute is a function, इसका absolute find करना है. In within the bracket they have applied the another function के pi into radius करके जो भी वैल्यू होगा pi into r into r. ठीक है, जो आउट वैल्यू होगा उसका एब्सोल्यूट कन्वर्ट करके देना है. क्या कन्वर्ट करके देना है? एब्सोल्यूट मतलब माइनस में होगा तो किस में कन्वर्ट करके देगा? पॉजिटिव. ओके, नेगेटिव में है तो कैसे कन्वर्ट करके देगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा. ओके, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस फंक्शन ऑन द टेबल. फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है तो क्रिएट टेबल create table test. Okay, r integer. Okay, sorry, insert into test table, test test values. Okay, same. Okay, now select star from test. Okay, so these are the R test table in which we have entered the value for r means radius. Okay, now if you want to find the absolute, okay, कोई चीज का आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए. ओके, व्हाट दे हैव डन हियर कि सिलेक्ट रेडियस एब्सोल्यूट अप्लाई किया है. किस पे अप्लाई किया है? पी आई इंटू आर पे. ठीक है, तो यू कैन यूज अ फंक्शन लाइक दिस. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट आर. ओके, एब्सोल्यूट चाहिए. किसका एब्सोल्यूट चाहिए? किसका एब्सोल्यूट चाहिए कि जो पाई जो है, ठीक है, पाई इंटू आर. ओके, एस जो भी आपको हेडिंग देना है हम लोग दे रहे हैं रिजल्ट फ्रॉम टेबल नेम. व्हाट इज द टेबल नेम? टेस्ट. यस, एक मिनट. पाई का वैल्यू व्हाट दे हैव टेकन पाई पी आई ना. Okay, pi is a function. Pi is a function, so you have to write like this. Okay, r into r. Sorry, r into r as table name. Sorry, heading from table name.
व्हाट इज द मिस्टेक स्टूडेंट, व्हाट इज द मिस्टेक, क्या मिस्टेक है जरा चेक करो। यस, क्या हुआ, एस रहेगा। ओके सॉरी। यस, ए, हाँ, दिस इज अ मिस्टेक। ओके, एस लिख दिया मैंने, डबल एस। ओके, सिंगल एस से रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट। ओके, तो अगर माइनस है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा, तो दिस इज यूज ऑफ एब्सोल्यूट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके, you can use the function individually also and with the table also। ये जो सारे functions आप टेबल के साथ भी यूज कर सकते हो, एंड you can also use with the individually भी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्यूट। अगर इंडिविजुअली यूज करना है विदाउट टेबल तो डायरेक्ट सिलेक्ट abs, okay, and give the any value। ओके, तो दिस डायरेक्टली होगा, इंडिविजुअली फंक्शन होगा। इफ यू वांट टू विद टेबल तो यू हैव टू यूज लाइक दिस, तो दिस इज अ एब्सोल्यूट फंक्शन। देन एक cos cos, okay, returns the a cosine of numeric expression, a sine value, okay, tan वैल्यू जो आप यूज करते हो मैथ्स में, ठीक है। न्यूमेरिकल फंक्शन है तो ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो रिटर्न्स हो गए। ए जो 10 है, ठीक है, उसका 2 वेरिएबल्स विथ दे यूज, ये प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है, इतना कुछ है नहीं उसमें, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द फंक्शन। सेल सीलिंग फंक्शन, CEIL, sorry, this one is ceiling, this is CEIL. It returns the smallest integer value that is not less than past numeric value. Okay, that is not less than past numeric value. And ceiling returns the smallest integer value that is not less than past numeric expression. Okay, दोनों का सेम ही है। Let's see, रन करके देखते हैं। Okay, रन करके देखते हैं हम लोग। Sil S C E I L function synonyms है। Okay, it is a synonyms, it accepts integer value as parameter, returns the smallest integer not less than the given number। Okay, तो CEIL and CEILING synonyms, the function MySQL is synonyms। Okay, मतलब same name है, you can use interchange, कोई भी use कर सकते हो। CEIL also you can use and CEILING पूरा भी use कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने you can also use directly select CEIL, जो भी वैल्यू ब्रैकेट में तो उसका सीलिंग वैल्यू will be written। okay, मतलब smallest value 22.3 है तो 23, okay, they have written। if you want to use with the tables तो table के साथ also you can use, तो select product name, customer name and CEL price from the cells। okay, selling price from the table। okay, so you can also use with the tables। so what you have to do students, you have to do the practice of all these functions। आपको ठीक है, ये tutorial point, this is the site is available, you can practice from this site या तो WH schools पे से भी you can practice all these functions। okay, इतना कुछ है नहीं tough, just you have to see the syntax ही आपको देखना उसका। okay, तो this is ये price को आपको अगर you have to find the ceiling value तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो कॉलम के साथ फाइंड करना है उसके आगे यू हैव टू राइट दिस। ओके, तो दिस आर द फंक्शन और जो मेन है वही करो, बाकी इतना कुछ है नहीं। अगर थियरी पेपर, इफ देयर विल बी थियरी पेपर तो आई कैन आस्क ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती थी कि राइट डाउन दी एनी 5 न्यूमेरिक फंक्शंस या तो एक्सप्लेन द ऑपरेटर्स। ओके, अगर एमसीक्यू है तो आई कैन आस्क द क्वेश्चन के फ्लोर है तो फ्लोर क्या होगा या तो कौन सा टाइप का फंक्शन, ऐसा कुछ फंक्शन आई विल आस्क, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस, इम्पोर्टेंट मतलब जो कॉमन है, मोड, पाई, पावर, ओके, साइन, कॉस, वो फंक्शंस एक बार रीड करो, उसको प्रैक्टिस करो। स्क्वायर रूट, ओके, SQRT स्क्वायर रूट, ओके, returns in non-negative square root of numeric function, returns in non-negative square root of numeric functions। okay, truncate will truncate the decimal places। okay, तो ये सारे जो फंक्शंस है जस्ट एज अ थियरी पोर्शन में हमको नहीं है, बट प्रैक्टिकल में दे आर गिवन टू अस के आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ये जो
फंक्शंस जो है वो एज ए थियरी कंसेप्ट में नहीं है, बट प्रैक्टिकल आई थिंक कोई तो प्रैक्टिकल है 1 या 2। इन दैट प्रैक्टिकल में आपको बोला है कि परफॉर्म एनी 5 फंक्शंस। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू कि विच प्रैक्टिकल यू हैव टू राइट इन योर फाइल पेज, या तो जो भी, अगर इफ यू हैव अ सिस्टम तो यू हैव टू रन दी प्रोग्राम्स, मतलब कमांड्स इन योर सिस्टम, एंड देन टेक दिस स्क्रीनशॉट एज अ आउटपुट। ठीक है, तो वैसे मैं बताऊंगी आपको कैसे लिखना है प्रैक्टिकल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करो आपका क्या वो थियरी असाइनमेंट्स जो है, दैट असाइनमेंट कंप्लीट करो। यूनिट 1 आई होप कि सबने कंप्लीट किया है। यूनिट 2 वी हैव कवर्ड यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ऑल्सो हमने कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू, आई विल शो यू सिलेबस। ओके, सिलेबस आई विल शो यू एंड टेल यू कि कौन सा टॉपिक्स हमने कवर किया है, कितना यूनिट्स हमने फिनिश किया है। ठीक है, क्योंकि नाउ अभी मैं लेक्चर जो वो लैपटॉप में ले रही हूँ, तो इसमें आई डोंट हैव सिलेबस कॉपी नहीं है मेरे पास। ओके, इसमें तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू। Okay, in the unit 3 all these topics are there, command join, set, operator and views, ये important topics है for the unit 3 के लिए, and aggregate functions। okay, and aggregate functions, these are the topics of unit 3। unit 2 में जो है that is commands, types of keys, constraints and normalizations। okay, all are the topics of unit 2। तो भी हम लोग syllabus refer करेंगे। okay, इसमें नहीं है syllabus in this folder में ना, syllabus is not there, otherwise I will show you कि syllabus में। okay, तो almost unit 3 तक we have completed up to unit 3। थोड़ा थोड़ा topics जो हैं 1 to 2 topics अगर बाकी होगा तो that we will cover, then we will start the unit 4। but unit 3 के बाद you have to written the practicals। ठीक है, practicals बताऊंगी मैं आपको, practicals आपको लिखना है। तो पहले questions theory complete करो, then practical लिखना। yes, हाँ, गूगल क्लासरूम पे भी सिलेबस है। आई नो कि वहाँ पे सिलेबस है, बट अभी नाउ इन माय सिस्टम देयर इज नो सिलेबस। ओके, अब मेरे सिस्टम में भी सिलेबस नहीं है। जो मैं डेस्कटॉप से लेती हूँ ना, डेस्कटॉप नहीं यूज़ करूँ मैं, टुडे आई एम यूजिंग द लैपटॉप। ये लैपटॉप में सिलेबस नहीं है। ओके, यस यस, एनीवन हैज़ एनी डाउट इन एनी टॉपिक? अभी तक जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया है, तो एनीवन हैज़ एनी डाउट इन एनी टॉपिक कि जो नहीं समझ में आया है? नो डाउट, नो, वेरी गुड, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है? अदर स्टूडेंट्स? यस, 22 स्टूडेंट्स आते हैं। श्रीजिल तो कभी कभी लेक्चर्स में आते हैं। यस, मिरान, एनीवन हैज एनी डाउट इन एनी टॉपिक? अभी अभी तक जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं, ठीक है, किसी को कोई डाउट है? यस, व्हाट इज कंस्ट्रेंट एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स? व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स? व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स? टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स कौन बताएगा मुझे? यस, जल्दी से चलो। व्हाट इज कंस्ट्रेंट एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट? Types of constraint, tell me the types of constraint। okay, yes, टाइप्स ऑफ कंस्टेंट नहीं याद है किसी को? यस, कोहिनूर, अरुण, सरफराज, इरशाद, रिंकी, स्टोर डेटा करंटली, these are the constraint, Gauri, Nishad। update, delete, insert into a table, that is not constraint। yes, Irshad, 5 types। अरुण, नॉट नल, चेक की कंस्टेंट, डोमेन कंस्टेंट, ठीक है, all are the constraint। ठीक है, please students don't forget any topics। okay, you have to remember at least concept जो है, you have to remember। ठीक है, types of constraint, what is constraint? constraint मतलब rules।
Okay, some conditions that table must have to follow. Okay, तो इतना you should remember. And types of constraint, तो details में नहीं याद है तो just remember the types of constraint, क्या क्या types की constraint है. Then what is key? Key is used to uniquely identify the records. Okay, key is used to uniquely identify the record. Types of keys, कौन से types के key है? The primary key, candidate key, super key, okay, and foreign key. Four are the keys हैं. Okay, now DBMS इतना भी tough नहीं है. Okay, it is not very tough subject. DBMS कोई tough नहीं है. In the unit 1 में थोड़ा theory is ज़्यादा है, but तो भी okay, it is easy as compared to operating system subjects. अगर हम लोग compare करें तो it is easy subject है. Okay, now unit 1, 2, 3. ठीक है, unit 1, 2, 3 का each and every topic you have to remember students. Okay, हर एक topics आपको पता होना चाहिए. I will ask anytime any question to any students. You are capable to give the answer. Okay, ऐसे blank नहीं बैठना है. कुछ तो answer you have to give. Yes, Irshad, very good. Domain constraint, tuple uniqueness constraint, key constraint, entity constraint, and referential integrity constraint. Very good, Irshad. Good. Okay. So all are the types of constraint. Okay. तो रोज रोज अगर पॉसिबल नहीं है तो वीकली सैटरडे संडे प्लीज रिवाइज ऑल दी टॉपिक्स. ओके, हार्डली यू विल रिक्वायर दी 1 आवर 2 आवर लगेगा पर सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए. जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स रिवाइज करो. ठीक है, कमांड्स राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, एक 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 नोटबुक बनाओ कि जिसमें सारे कमांड्स ही होगा. ठीक है, तो आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एग्जाम. ठीक है, जो कमांड्स हम लोग करते हैं ना वो उसके लिए अलग एक ही नोटबुक में अलग सेक्शन कर दो. इन दैट सेक्शन राइट ओनली कमांड्स. ओके, थियरी नहीं लिखना, ओनली कमांड्स. जो मैं कमांड्स टाइप करती हूँ ना प्रैक्टिकल विंडो में, प्रैक्टिकल में जस्ट राइट दैट कमांड्स ओनली लिखो. ठीक है, तो आपको याद रहेगा बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज यूजफुल इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर फॉर द प्रोजेक्ट के लिए आपको काम में आएगा. बिकॉज इन द प्रोजेक्ट यू हैव टू डू द कनेक्टिविटी विद द डेटाबेस. आपको फ्रंट एंड जो डिजाइनिंग है उसको कनेक्टिविटी करना है डेटाबेस के साथ. तो ऑल ऑफ यू मोस्टली यूज दी एसक्यूएल ही यूज करोगे सब लोग. ओके, एसक्यूएल डेटाबेस ही आप मोस्टली यूज करोगे. तो इन दैट केस यू हैव टू यूज ऑल दिस क्वेरीज. यही क्वेरीज यूज करना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी हम लोग कर रहे हैं, कमांड्स वगैरह, वेयर कंडीशन, एंड और नॉट, लाइक वगैरह, बहुत कमांड्स वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, जॉइंस वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको यूज करना है नेक्स्ट सेमेस्टर विच प्रोजेक्ट के साथ. तो प्लीज रिमेंबर, ऐसे इतना ही है कि अभी इसका यूज नहीं होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ थियरी सब्जेक्ट था हमारा. ओके, दैट इज ऑल फॉर जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, उसका यूज जनरली हमको उस सब्जेक्ट का यूज नहीं है, बट जस्ट इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. वो हमको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना है. बट यस, दिस सब्जेक्ट जो है दैट इज important for you because you will do the practical okay in your project with this subject के साथ. तो आपको याद रखना है. ओके, तो प्लीज अगर कोई डाउट है तो क्लियर दी डाउट. ओके, एंड प्रैक्टिकल आई होप सब लोग कमांड्स घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो. किसी ने मुझे अभी तक कुछ क्वेरी नहीं पूछा है. यस स्टूडेंट, घर पे रन करे तो कोई क्वेरी नहीं आ रहा है क्या? नो. ओके इरशाद, यस. बाकी स्टूडेंट्स इंस्टॉल किया सब लोगों ने? हैव यू इंस्टॉल्ड? ओके अरुण, हाँ, हैव यू इंस्टॉल्ड? अदर स्टूडेंट्स प्लीज गिव द रिप्लाई. ज्योति, रिंकी, सृजिल, नितिन. ओके, नितिन ने भी इंस्टॉल किया है. तो इंस्टॉल करो. ठीक है, कोई डाउट है तो वी विल सॉर्ट आउट. ओके, हबीबा आपका हो गया. वी प्रताप इज नॉट एक्टिव नाउ इन दिस सेमेस्टर. व्हाई वी प्रताप? जेनिश, कोई some students are never reply. ठीक, only जो few students है they are only replying. अजय इंस्टॉल किया घर पे? yes or no? अजय, गौतम, ज्योति, गौतम, yes किया. गुड मॉर्निंग. yes वी प्रताप, you are not active in this semester. Why? I will consider your behavior. Okay,
at the time of practical के time पे we have to give 5 marks to you for the attendance and your behavior activeness in the class. Okay, so I will consider for the 5 marks के लिए मैं consider करूँगी who are the active in the class, who are regular in the class. Okay, okay, so you have to give the answer at least chat box में you can uh, give the answer. अगर आपको नहीं बोलना है तो you can give the answer through the chat box. You can type in chat box ना. बाकी ऐसे तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन लेक्चर में है कौन नहीं है. ओके, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स जो है कोहिनूर, अरुण, इरशाद, नितिन, only they are replying. रिंकी, only they are replying. Other students are not replying. तो उसका दो ही मीनिंग है, एक तो वो लेक्चर में अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा है. देयर आर ओनली 2 रीजंस फॉर दैट. तो प्लीज बी एक्टिव. ओके, अभी तक के जो भी टॉपिक इन सरफराज इज ऑल्सो एक्टिव इन दी लेक्चर. सरफराज भी एक्टिव है. तो ये 5 to 6 स्टूडेंट्स छोड़ के कोई आंसर ही नहीं देता. ओके, चलो नाउ आज इतना ही. वी विल यस, एंड ये जो प्रोग्राम, ये जो फंक्शंस है, ओके, प्लीज परफॉर्म एट योर होम. ओके, कोई डिफिकल्टी है तो वी विल डू. ओके, तो इसमें इतना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑल आर द कॉमन है. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह इतना कुछ बड़ा इशू है नहीं. ओके, तो यू कैन यूज विद द टेबल ऑल्सो एंड इंडिविजुअली ऑल्सो. ओके, बट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड न्यूमेरिक ऑपरेशन. ठीक है, ये एज ए थियरी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है बट प्रैक्टिकल्स में उन्होंने मेंशन किया है. ओके, जनरली थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों सेम है, बट इन द थियरी दे हैव नॉट इंक्लूडेड दिस टॉपिक. फिर प्रैक्टिकल में उन्होंने दिया है कि परफॉर्म दिस फंक्शन, एनी 5 फंक्शन, ऐसा कुछ तो है. ओके, तो प्लीज इसको रिवाइज करना एक बार. ठीक है, रन करके देखो. जो कॉमन है 5 to 6 एब्सोल्यूट हो गया, साइन हो गया, कॉट हो गया. ठीक है, देन स्क्वायर रूट, देन फ्लोर, सीलिंग, मैक्सिमम, लॉग वैल्यू. तो ये थोड़ा सा रन करके देख लो. मार्क्स नहीं बताया बेटा नितिन. ओके, बाकी कोई फैकल्टीज ने बताया क्या? आई विल आस्क टू सरस्वती मैम देन टेल यू. ओके, आपको मार्क्स अगर बोला है बताने के लिए तो आई विल टेल यू. मैं मैम को पूछ के देखती हूँ. बता दिया क्या? ओके, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू द मार्क्स. ओके, क्योंकि हाँ 3 सब्जेक्ट का पता चला. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू. ओके, टुमारो आई विल टेल यू द मार्क्स. सबको मार्क्स बता दूंगी मैं. ओके, ओके, चलो. नाउ मे आई एंड दिस लेक्चर. Yes, ma'am.